Good evening, class 10th students. Today we are going to study the first chapter of your civics syllabus. The name of lesson is power sharing. As per the name of lesson, we can understand that about what the chapter is going to deal with. Power sharing means to run a state properly or to run a country properly without having any conflicts, without having any disagreements, or without depressing a particular society or a particular race or particular ethics. We can run that country if we have shared the power in all. Democracy actually had this same theme, but autocracy, nobularchy, monarchy, plutocracy, these are some form of government which did not believe in power sharing. They thought the power to be led in only one hand or in a group of some rich people's hand. Okay? That's why several of revolution, as we have been studying in history, French Revolution, Russian Revolution, nationalism in Europe, then nationalism in China, then nationalism in India itself. Okay. So, the requirement of democracy rose all around the world, in which people believe that if they will have a democratic country and democratic government, so power will be shared among all. None of the class, none of the religion, none of the race, none of the community will be bereaved of its right. Okay. So, first of all, question arises as your book says on page number 3 of politics, political science. Why and how is power shared in democracy? How has federal division of power in India helped national unity? To what extent has decentralization achieved this object? How does democracy accommodate different social groups? So to find out the answer of these questions, students, we have to understand some examples. And in your syllabus, you have been provided some examples of Belgium and Sri Lanka. Okay? Very two important cases to study, which will answer us that how to share power and why to share power among different of groups. Okay? Before reading that, before explaining you the cases of Belgium and Sri Lanka, I would like to tell you that to run a nation fluently, to avoid disagreements, to avoid civil war, to avoid riots, to avoid processions, protests,
power sharing is very important. It means every community, every race, every religion, every ethics, every citizen of that particular nation should have a complete faith and should have a complete satisfaction that he is being provided his right and he has the power to bring change into the working of government, to bring change into the working of executives, or to bring change into the working of judiciaries. If they are making partiality, if they are working against the principle of power sharing in all. Understood? I hope अभी तक इतना समझ में आपको आया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग की बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हमने देखा कि कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी पहले, जैसे मोनार्की की बात करें, एक राजा द्वारा शासन, नवलार्ची की बात करें, प्लूटोक्रेसी की बात करें, अमीरों द्वारा शासन, ओलिगार्ची की बात करें, है ना, फ्यू मेंबर द्वारा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस पहले थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उस समय क्या होता था कि इन टाइप के सारे गवर्नेंस में पावर शेयरिंग जो था वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के बीच में केंद्रित रहता था, सेंट्रलाइज रहता था, डिस्पर्स नहीं था, ओके, वाइड स्प्रेड नहीं था। तो उससे क्या होता था, लोगों को सताया जाता था, लोगों को अपने अधिकारों की कमी महसूस होती थी, उन्हें लगता था कि उनको इग्नोर किया जा रहा है उस देश में। तो एक नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, राष्ट्र भावना और लोकतंत्र की जो भावना एक जगी, ठीक है, डिमांड एक जगी, उसको हमने देखा है हिस्ट्री में। क्लास 9th को मैंने अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया, आपको अभी इस चैप्टर के बाद हम हिस्ट्री भी शुरू करेंगे जिसमें नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, आपने 9th में क्लास 10 के बच्चों ने पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा 9th में, नेशनलिज्म इन यूरोप का भी पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव रेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, तो उससे पता चला होगा। फिर उसके बाद नेशनलिज्म इन चाइना भी है, इंडो चाइना है, नेशनलिज्म इन इंडिया है। सो वी हैव सीन दैट सभी जगह पे क्या है कि डेमोक्रेसी की बात की गई है। क्यों बात की गई? क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है वो इक्वल होता है, सबके हाथ में, एक एक पर्सन के, सिटीजन के हाथ में अधिकार होता है। ओके, इसीलिए पावर शेयरिंग की जरूरत है। ठीक है, आई होप जो क्वेश्चन राइज किया गया है आपके ऑब्जेक्टिव से, उसका आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए, वी विल रीड द केसेस ऑफ बेल्जियम। We all know that Belgium is a small country in northwest Europe, okay, and it is surrounded by Netherlands, France, and Germany. Okay, Belgium is a small country. It has only population of over 10 million people. सिर्फ 10 मिलियन के आसपास उसकी जनसंख्या है, ओके, और छोटी सी कंट्री है यूरोप की, नॉर्थ वेस्ट में, जर्मनी, फ्रांस से लगभग घिरा हुआ है। अब वहां की डेमोग्राफी, अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी ऑफ बेल्जियम, अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी ऑफ बेल्जियम। ओके, टोटल पॉपुलेशन का जो 59% है, दैट इज लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 49% जो है वो फ्लेमिश रीजन का है, एंड दे स्पीक डच एंड दे आर एथनिक। एथनिक मीन्स पीपल who belong, who are related to each other on the basis of culture. Okay, they have same culture, they have same tradition, and सबसे important बात,
they believe to be from same descendant. एक ही पूर्वजों से मानते हैं कि उनका उत्पत्ति हुआ है. They believe to be from same descendant. तो ऐसे लोगों को हम एथनिक कहते हैं. इनकी जनसंख्या वहां कितनी थी? 59% थी. ठीक है. और ये लोग डच बोलते थे. नेक्स्ट जो रेस्ट 40 और 41%, 40% जो है अभी, दे लिव इन वेलोनिया रीजन. ठीक है. बेल्जियम को यदि आप बांटेंगे, यू कैन सी द फिगर ऑन पेज नंबर 4 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस बुक. ठीक है. फिगर में आप बेल्जियम को पेज नंबर 3, नॉट पेज नंबर 4, पेज नंबर 3 पे यू कैन सी द फिगर ऑफ बेल्जियम. ओके. सो वालून देखिए, जहां पे फ्रेंच स्पीक किया जाता था, नेवी ब्लू से इस फिगर को दर्शाया गया है, नेवी ब्लू से. ओके. एंड फ्लेमिश जहां पे डच स्पीक किया जाता था, उसको देखिए ग्रे से दर्शाया गया है. ओके. सो एंड जो 1% है उसमें जर्मन स्पीकिंग थे. ठीक है. 1% जो है दैट वे जर्मन स्पीकिंग, जो एकदम कॉर्नर में इधर दर्शाया गया है ऑन द राइट साइड ऑफ वेलोनिया. ओके. And in the capital city Brussels, 80% of people speak French while 20% Dutch speaking. और जो इसका कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, Brussels, you can see that in the figure it has been given in light blue, dark blue color. Okay, so that has mixed composition of demography. उसमें जो है डेमोग्राफी मिक्स थी, लेकिन even then जो 80% थे they were French speaking, and जो 20% थे that were Dutch speaking. But if we read the overall demography, this was the demographical composition. ठीक है. किस प्रकार से पॉपुलेशन किस प्रकार की थी, कितनी थी, कौन से भाषा बोलने वाले, क्या बिलीफ रखने वाले, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है. और जब हम इसको ओवरऑल देखेंगे तो बेल्जियम जो है एट दैट टाइम 59% डच स्पीकिंग लोगों से, एथिकल लोगों से, दोज हु बिलीव टू बी बिलोंग फ्रॉम सेम एंसेडेंट, वैसे लोगों से ज्यादा था घिरा हुआ. फिर 40% जो थे वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे, एंड देन द रेस्ट वन वेर जर्मन स्पीकिंग. ओके. सो by reading this composition of demography in Brussels, in Belgium, okay, we have come to the point that the number of ethnic people, the majority of ethnic people was bigger, mass of ethnic people was bigger. But opposite to this, French speaking community was rich and powerful. French speaking community जो है वो हमेशा rich था, ओके, और पावरफुल था. इसीलिए जो डच के लोग थे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, तो उन्हें हमेशा फायदा मिलता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का. ठीक है. इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. अ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. ओके. बिकॉज ऑफ दिस अ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. सो जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो ड्यूरिंग 1950s एंड ड्यूरिंग 1960s दे वेर एट द कॉन्फ्लिक्ट वाज एट इट्स पीक लेवल. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, और उसके बाद डच स्पीकिंग कंट्री जो थी वो मेजोरिटी थी पूरे स्टेट में, लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी थी. अंडरस्टूड? आए समझ में आपको? आई जस्ट रिपीट वंस अगेन कि ओवरऑल इफ वी विल ऑब्जर्व द पॉपुलेशन, द डेमोग्राफी ऑफ बेल्जियम ओवरऑल, सो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वेर इन माइनॉरिटी. ओके. French speaking people were in minority and Dutch speaking people were in majority. But if taken in Brussels, the capital city, राजधानी की बात करें, तो Dutch speaking people were in majority in the country, but they were in minority in the capital. Okay.
सो इसलिए ड्यू टू दिस uneven distribution of demography, okay, they had conflicts, okay, various of conflicts, अक्सर उसमें वाद विवाद हुआ करता था, and politically, socially और economically they fought with each other, ठीक है। काफी सारे कम्युनिटीज में, डच स्पीकिंग में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में कई सारे विवाद हुए, जो और भयानक बाद में हो गया, ओके, due to uneven distribution of demography. Now come to the case of श्रीलंका। अब आप श्रीलंका का केस समझिए, ओके। श्रीलंका, we all know that it is a nation of South Asia, okay, and इसका लोकेशन भी दिया हुआ है 31 किलोमीटर ऑफ the southern coast of India. It's very clear, understood. And the population of Sri Lanka is about 20 million people. Population क्या है? 20 million people. Now see here, इसमें भी बेल्जियम की तरह uneven distribution है, इसमें भी बेल्जियम की तरह uneven distribution. And there is a great difference between majority and minority. Majority और minority में एक बड़ा डिफरेंस भी इसमें है, बिकॉज द सिन्हालिस कम्युनिटी, सिन्हाला के लोग, सिन्हाला से संबंध रखने वाले लोग, चिलाना से ताल्लुक रखने वाले लोग, द सिन्हालिस कम्युनिटी फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे आर इन नंबर ऑफ 74%, ओके, एंड ऑपोजिट टू देम द Tamil were just 18%. Tamil people were just 18%. Okay. And these Tamil were also divided into two parts. First were Tamil who were originally born in Sri Lanka, who were natives, that were called Sri Lankan Tamils. Okay. And second, that were brought to Sri Lanka in an era of time by the Britishers as a worker in tea plantation. Okay, and they were called Indian origin Tamils. They were in 5%. So डेमोग्राफी समझिए, सिन्हालिस कम्युनिटी जो है श्रीलंका की वो 74% आबादी रखने वाली है, और जो तमिल लोग हैं वो 18%। इस 18% में भी आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल है, मतलब वहां के बोर्न तमिल हैं, वो सिर्फ वो जो है 13% लोग हैं, और बाकी बचे 5% जो है वो भारत से ब्रिटिश द्वारा वहां ले जाए गए, ठीक है, जिनको प्लांटेशन में एज अ वर्कर ले जाया गया था, वो लोग हैं। ओके, सो एक बड़ा अंतर है पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन में जब अंतर होता है और पावर शेयरिंग इक्वल नहीं होती है तो फिर काफी सारे विवाद होते हैं। लोग चाहते हैं जो मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन के यदि हाथ में सत्ता रहे तो वो चाहती है कि उसके समाज का, उसकी कम्युनिटी का ज्यादा ग्रोथ करवाया जाए, और माइनॉरिटी के हाथ में यदि सारे अधिकार दे दिया जाए तो फिर ये मेजॉरिटी को दबाना चाहती है, अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहती है, बकाया चुकता करना चाहती है। ओके, सो पावर शेयरिंग जो है इक्वल होना चाहिए। अब श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या था कि जो सिन्हाला पीपल थे, ओके, वो सिन्हाला में मतलब लैंग्वेज है, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, और जो सिन्हाला लोग बोलते थे वो बुद्धिज्म को मानते थे, ठीक है, बट जो तमिल पीपल थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। ओके, तमिल जो पीपल थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, और 7% के आसपास कुछ क्रिश्चियन भी थे, जो तमिल और सिन्हाला दोनों थे, बट वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने अडॉप्ट कर ली होगी, ठीक है। सो रिलीजन इनका अब अलग होने लगा, मेजोरिटी बुद्धिज्म को फॉलो कर रही है, और माइनॉरिटी में आइदर देवर तमिल और देवर आइदर देवर हिंदू एंड देवर मुस्लिम। ओके, सो व्हाट हैपेंड 1948 में जब इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका,
ओके 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ तो सिन्हालीस जो थे उस समय मेजोरिटी में भी थे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर उस समय आजादी में अपना हिस्सा लिया था, योगदान लिया था। तो सिन्हालीस लीडर्स की नंबर ज्यादा थी। द लीडर्स ऑफ सिन्हालीस पीपल ओके was greater. The number of leaders of Sinhalese people at the time of getting independence in 1948 was greater than the Tamil people. Okay, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब उन्होंने इलेक्शन करवाया, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करवाया, तो जीतने के बाद उन्होंने मेजोरिटेरियन का प्रोसेस अपनाया, मेजोरिटेरियन का प्रिंसिपल अपनाया। नाउ व्हाट इज दिस मेजोरिटेरियन और मेजोरिटेरियनिज्म? ओके, इट मींस अब इट इज जस्ट एन आइडियोलॉजी, सिर्फ एक विचारधारा है ये। इट इज जस्ट एन आइडियोलॉजी इन विच पीपल थिंक दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शैल बी एबल टू रूल एंड दे शैल हैव ऑल द पावर and they can make any law whichever they wanted, okay, by not observing about the needs of minority people. मतलब ये एक ऐसी विचारधारा है, बहुमत है ना, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें बहुमत वाले लोग सोचते हैं कि सत्ता पे शासन सिर्फ हमारा हो सकता है, हम जो चाहे कानून ला सकते हैं अपने लिए और माइनॉरिटी पीपल का अनदेखा नहीं कर सकते। So the same happened in श्रीलंका। श्रीलंका में 1948 इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सेम हैपेंड। ओके, सिन्हालास पीपल एंड सिन्हालास लीडर वेर ग्रेटर इन नंबर, सो दे process the freely elected democratic government, but मेजोरिटी में ज्यादा थी तो इन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर ओन सुपरमेसी, और उन्होंने सुपरमेसी दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1956 में इस सिन्हालास के द्वारा चलाई गई रही सरकार ने what they did, an act was passed under which English was replaced as country's official language. Okay, not by Sinhala and Tamil but Sinhala only. अब ये जो राय था वो दोनों लोगों से मिलकर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तमिल लोगों से पूछकर इन लोगों ने नहीं किया। They did not took this measure after discussing it, after agreeing it with Tamil people. They simply decided by themselves and they passed the law. उन्होंने तय किया और उन्होंने लॉ पास कर दिया। नेक्स्ट, यदि किसी गवर्नमेंट जॉब की बात होती थी या किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात होती थी, then Sinhala people only preferred the government, there only preferred the Sinhala applicants. मतलब कि मेजोरिटेरियन की वहां एक सरकार थी, इसलिए वो अपने ही लोगों को प्रेफर देता था सरकारी स्कीम में या सरकारी जॉब में। Okay, so a new constitution
जो आया उसमें क्या स्टिपुलेट किया कि भाई बुद्धिज्म को बढ़ावा देना है, नॉट हिंदू एंड नॉट मुस्लिम बट बुद्धिज्म को बढ़ावा देना है। फिर जो तमिल पीपल थे उनको सिटीजन मानने से भी इनकार कर दिया। ओके, सो अब रिजल्ट क्या हुआ कि इस प्रकार से माइनॉरिटी को अनदेखा करने लग गया। माइनॉरिटी पीपल वेयर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे ओनली टुक ऑल द स्टेप दैट कैन ओनली प्रॉफिट द सिन्हाला पीपल, द मेजॉरिटी पीपल। सो दिस स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा। श्रीलंकन तमिल पीपल स्टार्टेड टू फॉर्म देयर ओन पार्टीज, दे स्टार्टेड सम recognition, they started some revolution, they started protest processions। मतलब तमिल पीपल ने फिर क्या किया कि अपनी पार्टी बना ली। ओके, और उस पार्टी के तहत उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, धरना शुरू कर दिया, प्रोसेशन निकालने शुरू कर दिए। ओके, और अपनी मांग रखने लग गए कि जॉब में हमारा अधिकार दीजिए, लैंग्वेज में हमारा अधिकार दीजिए, गिव अस आवर राइट। ओके, बट 1980 में फिर इसके बाद क्या हुआ, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आ गए सामने जिन्होंने कहा कि ठीक है, इफ यू कैन नॉट रेस्पेक्ट अस, इफ यू कैन नॉट रेस्पेक्ट आवर लैंग्वेज, इफ यू कैन नॉट गिव अस चांसेस इन योर गवर्नेंस, इन योर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, इन योर जुडिशरी डिपार्टमेंट, यदि आप हमें न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था किसी में हमारी जगह नहीं दे सकते तो हमें आप अलग स्टेट दे दीजिए। And they demanded for Tamil Elam in northeastern श्रीलंका। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में श्रीलंका के उन्होंने एक अलग स्टेट मांग ली। ठीक है, इसका डिमांड होने लगा। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो गया। ओके, एंड देन 23 जुलाई 1983 तक, 23 जुलाई 1983 तक वहां पे सिविल वॉर ही हुआ गवर्नमेंट के बीच में। और दैट टाइम प्रोमिनेंट पार्टी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जिसे हम लिखते भी कहते हैं LTTE, दैट टाइम ऑफ प्रोमिनेंट पार्टी फॉर तमिल्स, फॉर माइनॉरिटी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में लगातार सिविल वॉर होने लगा। ठीक है, रह रहकर सिविल वॉर होने लगा। और इसी के नाम पे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए तमिल एलम, नॉर्थ ईस्ट के श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिविल वॉर 70,000 पीपल वर किल्ड सिंस 1983। 70,000 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए। और ये एक विश्व का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है जिसका बहुत बुरा प्रभाव रहा था। ओके, सो ये सब देखा कि these two examples and these two cases, students, explain us that what can be the circumstances, what can be the result, okay, and a fierce result, सिर्फ result नहीं, भयानक result क्या हो सकता है if the power is not shared। जो शक्तियां हैं शासन की, प्रशासन की और न्याय व्यवस्था की, उसको यदि आप सब में बांट कर नहीं रखते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस प्रकार से नेशन टूट सकता है, किस प्रकार से सिविल वॉर हो सकते हैं, किस प्रकार से रॉयट्स हो सकते हैं। ओके, ये दो एग्जांपल्स हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब आगे जो है, सिंस द ऑडियो सेशन इज गोइंग लॉन्ग, आई थिंक अब आगे दो टॉपिक हमें देखना है कि बेल्जियम में इसको कैसे सुधारा गया, फिर श्रीलंका में इसको कैसे सुधारा गया, और तब हमें खुद ही खुद पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। डेमोक्रेसी मतलब पावर शेयरिंग मतलब डेमोक्रेसी, दोनों क्यों डिजायरेबल है। वी विल स्पीक अबाउट दैट एंड हाउ द मैटर वेयर सेटल्ड इन श्रीलंका, हाउ द मैटर वाज सेटल्ड इन Belgium. We will also speak about that in my next lecture. Till then, I ask you to read the chapter. जहां तक मैंने आपको पढ़ाया, एकोमोडेशन इन बेल्जियम से कल शुरुआत करेंगे। अभी आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका के केसेस पढ़ने हैं, देन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पढ़ लेना है। ओके, एंड फॉर योर होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स, listen carefully
first one, सी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो सी है आपके एक्सरसाइज का सेक्शन सी है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ओके, उसका आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसका आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 4 and 5 and 6. Okay, and 8. Okay, and yes, इसका आप करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 8. Okay, these all you have to do, and now on the next page there are some both questions. both question दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को करना होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. Okay, yes. So in total these questions you have to do by yourself, as well as I want you to make notes on important terms such as ethnic, majoritarianism, and Indian origin Tamils, Sinhalese community. Okay, and these are some important terms that you shall